A very good morning to you all, children. Today we'll be doing the new chapter of your English supplementary reader, An Alien Hand. This is the chapter number 2, Bringing Up Kari. The author of this chapter is Dhan Gopal Mukherjee, and probably he is the only one who is narrating the story. But this story is about him and an elephant. So there is an elephant in the story, and the narrator who is narrating the story, the author who is telling the story, when he was a boy, a 9-year-old boy, he went through, and he had an elephant who was barely some months old, and how he brought him up. So bringing up Kari is to nurture him, to bring him up. So bring up मतलब उसको नर्चर करना, उसे पालना या उसे बड़ा करना. So that means bringing up. Kari is the name of the elephant. So as a prelude, when we read the chapter before that, there is a short description of the story, what it is all about. I'll just read it for you. You just have to listen it carefully. Kari, a 5-month-old baby elephant, lives and grows up with his 9-year-old friend and keeper. So basically the narrator is the keeper also, and he is a 9-year-old boy who is his friend, who is a friend of the elephant Kari. Kari doesn't eat much, just about 16 kilograms of delicious twigs a day. So here is a humor, a pun, a kind of a humor कि एक मजाक में बोला हुआ है कि he doesn't eat much. Do you think that 16 kg of delicious twigs a day is not much? It is quite a lot. So इस तरह से एक मजाक की तरीके से कहा है कि कारी ज़्यादा नहीं खाता था. He only used to eat 16 kgs of delicious twigs. Delicious is very tasty. Twigs are the small branches of trees, like they are tiny branches. एंड दे आर वेरी टेंडर. बहुत छोटे छोटे जो नए उगे हुए थे ब्रांचेस हो, उनको खाता था वो. प्लेफुल एंड सेंसिटिव, कारी saves a boy from drowning. So these are the qualities of Kari. Kari the elephant was always playful. He was always playful. He was sensitive. Sensitive is who is emotional. So and he saved a boy from drowning. Drowning is डूबने से बचाया उसने. So how the story goes, I'll just narrate it. Kari, the elephant, was 5 months old when he was given to me to take care of. I was 9 years old and I could reach his back if I stood up on tiptoe. He seemed to remain that high for nearly 2 years. We grew together. This is probably why I never found out just how tall he was. He lived in a pavilion under a thatched roof which rested on thick tree stumps so that it could not fall in when Kari bumped against the pole as he moved about. So in this paragraph we can see that Kari was barely some months old. How months old? He was 5 months old and the boy was 9 years old. But as you know, even if it is a baby elephant, the size of elephant is very huge. So the author says when he was 9 years old, when the author was 9 years old, he has to when he has to reach the back of Kari, he has to stand on his tiptoe. So tiptoe आपको पता है कि जब आपका कहीं reach नहीं पहुंचती है, for suppose if you want to reach to the slabs of kitchen, जो तो आपके हाइट से थोड़ा सा ऊंचा है, या कहीं ऐसी जगह आप जाते हो और जब आप उसको छूना चाहते हो तो आप क्या करते हो, टोज के टिप में खड़े हो जाते हो, एंड then you reach with a little bit of difficulty but still you manage to reach. तो इसी तरीके से जब ऑथर अपने टोज के टिप पे खड़ा होता था तब he could reach his back. So that is what he is telling about. और वो बताता है कि कारी जो है एक पेविलियन में रहता था. देर वॉज अ स्मॉल प्लेस जो एक थैच रूफ की एक जगह बनाई हुई थी, विच वॉज रेस्टेड ऑन थिक ट्री स्टम्प्स. पेड़ के मोटे तनों के ऊपर वो बेस थी, एंड वो इसलिए बनाई गई थी सो दैट कारी शुड नॉट फॉल. वो कारी के ऊपर गिर ना जाए. जब कारी पोल्स के अगेंस्ट बम्प करे या फिर टकरा जाए तो वो ये जो हाउस है उसका जो पवेलियन बनाया है वो उससे हिट करके उसे चोट ना लगे. One of the first things Kari did was to save the life of a boy. So सबसे पहला काम कारी ने क्या किया, उसने उस बॉय की लाइफ को सेव किया. Kari did not eat much but he nevertheless needed
40 pounds of twigs a day to chew and play with. Every day I used to take him to the river in the morning for his bath. He would lie down on the sand bank when I rubbed him with the clean sand of the river for an hour. After that he would lie in the water for a long time. On coming out, his skin would be shining like ebony, and he would squeal with pleasure as I rubbed water down his back. Then I would take him by the ear, because that is the easiest way to lead an elephant, and leave him on the edge of the jungle while I went into the forest to get some luscious twigs for his dinner. One has to have very sharp hatchet to cut down these twigs. It takes half an hour to sharpen the hatchet, because if a twig is mutilated, an elephant will not touch it. So here in this paragraph the boy is telling how Kari used to love water. So you can when you read the chapter, you have to be very careful that you have to read and understand it line by line, because if a question is asked from in between, so you must be able to answer it. When you will be understanding it, then only you will be able to answer it. So how do we know? When they say that he never used to eat that much, that means it is a joke. They are just telling it out of a humorous way. In a humorous way मतलब जब मजाक के तौर पे कहते हैं कि ज़्यादा नहीं खाता था. 40 pounds, it was nearly about 16 kgs of twigs. डेली उसको च्यू करने के लिए चाहिए थी. च्यू करने के लिए खाता भी था और उसे प्ले भी करता था, खेलता भी था. एवरी डे ऑथर सेज मैं उसको लेके जाता था रिवर में और नदी के पास मॉर्निंग बाथ के लिए ले जाता था. ही वुड लाई डाउन, वो सैंड बैंक जो रेत का किनारा था वहाँ पर वो लेट जाता था. आई रब्ड हिम विद द क्लीन सैंड, जो नदी के किनारे जो क्लीन जो साफ़ सुथरी जो सैंड होती, रेत होती, उससे मैं उसे नहलाता था. And the author says that he used to rub the sand into his body, वो sand उसकी body में, because the elephant skin children it is very thick, so उसको sand से rub करने पे उसे मज़ा भी आता था. और उसकी जो skin थी, after he used to give him bath और उसके बाद पानी डालता था, sand से rub करता था, तो it used to shine like ebony. Ebony is a very shiny name of a shiny wood. वो बहुत costly और बहुत beautiful wood है जिसे ebony कहते हैं, उसके साथ compare किया. सो देर इज़ अ सिमिली फिगर ऑफ स्पीच जो होता है, जो आप लेटर ऑन इन योर क्लासेस यू विल बी रीडिंग. जब किसी चीज़ की किसी से तुलना की जाती है, सो दैट इज़ अ सिमिली. सो यहाँ पर क्या किया है, जो स्किन ऑफ द एलिफेंट इज़ कंपेयर टू द शाइनिंग स्किन ऑफ एन एलिफेंट इज़ कंपेयर टू एबनी, कि वो इतनी ज़्यादा चमकती थी. सो इस तरीके से देर इज़ अ लाइन विच इंडिकेट्स दैट कारी यूज़ टू लव वाटर, बिकॉज वो काफ़ी देर तक उस पानी के अंदर काफ़ी देर तक वो रहता था. तो दैट मीन्स दैट ही यूज़ टू लव वाटर. एलिफेंट को अच्छा लगता था. And he says that the author says that I used to take him by the ear. वो उसको कान से पकड़ के एलिफेंट को लेके जाता था, because he says that this is the easiest way to lead an elephant. जब किसी एलिफेंट को किसी हाथी को ले जाना होता है, लीड करके अपने साथ लेके जाना होता है, तो दैट इज़ द ईजिएस्ट वे. ये एक तरह की ट्रेनिंग के कुछ सिम्बल्स हैं, उनको किस तरीके से लिया जाता है. सो इस तरीके से मैं उसको साथ में लेके जाता था टू लीव him and leave him on the edge of the jungle. मैं उसको जंगल के एज पे छोड़ देता था. he used to be there daily. और उस समय मैं क्या करता था, ऑथर सेज मैं फॉरेस्ट में जाता था. लूशियस ट्विग्स, जो बहुत ही डिलीशियस, बहुत ही ज़्यादा टेंडर जो ट्विग्स होती थी, जो ब्रांचेस होती थी, उसके डिनर के लिए ढूंढने के लिए उस समय जाता था. Now author says कि it was not easy, it was not very easy to bring him his dinner and all, क्योंकि उसके खाने का इंतज़ाम करना बहुत ही लंबा प्रोसेस होता था. सबसे पहले तो जो हैचेट है, जो एक शॉर्ट काइंड ऑफ एक्स, इट इज़ लाइक एक जो बिनी शॉर्ट कुल्हाड़ी होती है, उस तरीके का एक उसका वेपन था, उसको लेके जाता था. और वो बोलता है उस वेपन को डेली आधे घंटे के लिए शार्पन करना होता है, जिसे हिंदी में कहते हैं धार लगाना. सो ही यूज़ टू गेट इट शार्पन, बिकॉज ही हैज़ टू बी वेरी केयरफुल while taking out the twigs, because in this process अगर twigs mutilated हो जाते थे, mutilate होने का मतलब the meaning of mutilate is to get disfigured or to get
लाइक बर्बाद हो जाना, म्यूटिलेट हो जाना, डिसफिगर हो जाना, दैट मीन्स म्यूटिलेटेड. सो अगर इस प्रोसेस में ख़राब हो जाते थे ट्विग्स, तो एलिफेंट कभी भी उसे टच नहीं करता था. सो वी नो दैट इट वाज अ कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस. इतना ईजी नहीं था डाल पे डाल फॉरेस्ट की जाके उसको ऑथर को ही यूज टू सर्च फूड फॉर हिम एंड ही यूज टू बी क्वाइट गुड इन दैट प्रोसेस. उसको पूरा अच्छे से उसकी तैयारी करनी पड़ती थी टू शार्पन द हैचेट एंड ऑल दैट. तो दैट इज़ how he is explaining that it was a lengthy process. So again in this paragraph he says it was not an easy job to get twigs and saplings for kari. Kari के लिए saplings होते हैं, छोटे पौधे, और twigs लाना easy job नहीं था. I had to climb all kind of trees to get most delicate and tender twigs. So सबसे ज़्यादा delicate और जो tender twigs थे वो लाने के लिए मुझे कई branches में forest की जाना पड़ता था. As he was very fond of the young branches of the banyan tree which grows like a cathedral of leaves from the branches, I was gathering some one spring day in March when I suddenly heard Kari calling to me from a distance. As he was still very young, the call was more like of a baby than an elephant. So here he goes. He explains that जब ये ट्विग्स लेने जाता था, द ऑथर यूज टू गो, सो दैट टाइम कारी यूज टू बी देयर इन द एज ऑफ द जंगल. सो यहाँ पर कारी वॉज फॉन्ड ऑफ मतलब पसंद था. क्या पसंद थे? यंग ब्रांचेस ऑफ द बैनियन ट्री. बैनियन ट्री कौन सा होता है? बरगद का पेड़ होता है. सो यू माइट हैव सीन बैनियन ट्री, यू माइट हैव रेड इन योर साइंस बुक्स ऑल्सो. सो इट इज़ अ वेरी ह्यूज ट्री. उस बैनियन ट्री के जो यंग ब्रांचेज है वो कारी को बहुत पसंद थे. तो ही वॉज वन डे गैदरिंग सम ऑफ देम. वो ढूंढ रहा था. ऑथर वॉज वन फाइन डे, स्प्रिंग सीजन जब चल रहा था, वसंत ऋतु, मार्च में, ही वॉज गैदरिंग सम ऑफ द बैनियन ट्री के twigs. Then suddenly he found that Kari की sound उसे सुनाई दी, and he thought कि that he from a distance Kari was calling. सो ही वॉज स्टिल वेरी यंग. सो इस तरीके से जब उसकी आवाज़ सुनी तो उसकी छोटे होने की वजह से उसकी आवाज़ एलिफेंट से ज़्यादा बच्चे की आवाज़ से जैसी लग रही थी. आई थॉट समबडी वॉज हर्टिंग हिम, सो आई केम डाउन फ्रॉम माई ट्री एंड रैन वेरी फास्ट टू द एज ऑफ द फॉरेस्ट वेयर आई हैड लेफ्ट हिम बट ही वॉज नॉट देयर. सो मुझे ऐसा लगा उसकी आवाज़ दूर से सुन के कि कारी को कोई हर्ट कर रहा है, कोई नुकसान पहुंचा रहा है. सो दैट इज़ द रीज़न आई केम डाउन रनिंग. द ऑथर रन्स एंड ही कम्स देयर, बट व्हेन ही सीज देयर वाज वेयर ही हैड लेफ्ट हिम, जहाँ उसने उस एलिफेंट को छोड़ा था उस जगह पे आता है, बट ही सीज दैट कारी इज़ नॉट देयर. कारी वहाँ नहीं होता है. आई लुकड ऑल ओवर बट आई कुडंट फाइंड हिम. मैंने सब जगह देखा बट मुझे वो नहीं मिला. आई वेंट नियर द एज ऑफ द वाटर and I saw a black something struggling above its surface. Then it rose higher and it was the trunk of my elephant. I thought he was drowning. I was hopeless because I could not jump into the water and save the 400 pounds of him since he was much higher than I. But I saw his back rise above the water, and the moment he caught my eye, he began to trumpet and struggle up to the shore. So I'll just explain you one by one because the paragraph is too lengthy. So I'll just explain the meaning till here. So as he goes there, he sees what does he see? He sees that there was a black something. He could see. He could not recognize that it was Kari, but he could see there was something black which was struggling above the surface. वो पानी की सतह से ऊपर उठने की कोशिश कर रहा है. There was something black. Then it rose higher. फिर वो थोड़ा और ऊंचा उठा. And it was trunk of my elephant. और ये तो मेरी एलिफेंट की ट्रंक थी. What is trunk? Trunk is सूंड को हम ट्रंक कहते हैं. सो आई थॉट ही वॉज ड्राउनिंग. पहले मुझे लगा कि वो डूब रहा है. सो आई वॉज होपलेस बिकॉज अगर मुझे लगा कि ये एलिफेंट डूब रहा है तो मैं उसे कैसे बचाऊंगा, बिकॉज मेरा जो वेट है उसकी वेट से तो बहुत ही ज़्यादा कम है. सो आई कुड नॉट जंप इन टू द वाटर एंड आई कैन नॉट सेव हिम बिकॉज 100 पाउंड्स वो तो मुझसे बहुत ज़्यादा हायर और बड़ा है. सो बट आई सॉ हिज बैक राइज अबव द वाटर. बट मैंने देखा उसकी जो पीठ है वो धीरे धीरे पानी से ऊपर उठ रही है, वो डूब नहीं रहा था. एंड द मोमेंट ही कॉट माई आई, और जैसे ही उसने ही कॉट माई आई का मतलब होता है, देयर इज दिस फ्रेज मीन्स कॉट माई आई का मतलब है जैसे ही उसकी नज़रें मुझसे मिली, जैसे ही कुड सी मी, ही बिगन टू ट्रम्पेट. उसने ट्रम्पेट, द साउंड ऑफ एन एलिफेंट इज कॉल्ड ट्रम्पेट. सो देर आर वेरियस साउंड्स ऑफ एनिमल्स लाइक स्नेक हिसेस, लायन रोर्स. सो जो एलिफेंट है वो ट्रम्पेट. सो एलिफेंट ने आवाज़ निकाली एंड
ही स्ट्रगल अप टू द शोर, और वो किसी तरीके से मुश्किल से स्ट्रगल करके, कोशिश करके शोर की तरफ, किनारे की तरफ बढ़ा. Then still trumpeting, he pushed me into the water, and as I fell into the stream, I saw a boy lying flat on the bottom of the river. He had not altogether touched bottom, but was somewhat afloat. I came to the surface of water to take my breath, and there Kari was standing, his feet planted in the sandbank, and his trunk stretched out like a hand waiting for mine. I dived down again and pulled the body of the drowning boy on the surface, but not being a good swimmer, I could not swim ashore, and the slow current was already dragging me down. So here it goes. What he says, आगे जाके क्या हुआ? आगे जाके ये हुआ कि आवाज़ एलिफेंट की सुन के उसने देखा कि ही वो स्टिल स्ट्रम्पटिंग, वो और ज़्यादा भी चिल्लाए जा रहा है और मुझे देख के कुछ कहना चाह रहा था. सो व्हाट डिड ही डू? द एलिफेंट पुश्ड मी इनटू द वाटर. ही सेज कि कारी ने मुझे पानी की तरफ धकेला, पुश किया, एंड आई फेल इनटू द स्ट्रीम, और मैं वो स्ट्रीम में, उस पानी के अंदर मैं गिर गया. जब मैं गिरा तब मैंने ये देखा, बिकॉज ही वॉज ट्राइंग टू इंडिकेट, एलिफेंट उसे कुछ दिखाना चाहता था. जैसे ही मैं नीचे गिरा, आई सॉ अ बॉय, मैंने एक लड़का देखा जो फ्लैट बॉटम, नीचे रिवर के, नदी के बॉटम में, नीचे सतह की तरफ ही वॉज लाइंग, वो फ्लैट होके गिरा हुआ था. ही हैड नॉट ऑल टुगेदर, वो उसने पूरी तरीके से उस स्ट्रीम का बॉटम, नदी के बॉटम को टच नहीं किया था, बट समवॉट अफ्लोट, वो थोड़ा बहुत ऐसा लग रहा था जैसे नीचे जाते जाते तैर सा रहा है. मतलब वो ही वॉज नॉट हैविंग कंट्रोल ऑन हिमसेल्फ, ही वॉज ड्राउनिंग. सो आई केम टू द सर्फेस. और अब इतना कुछ देखने के बाद सडनली क्या होता है, चिल्ड्रन, व्हेन वी आर इन वाटर एंड वी सी सो मैनी थिंग्स, इतना सब कुछ हम देख रहे होते हैं. सो अंडर वाटर में हमारे ऑक्सीजन जो होता है वो कम होता है, तो हमें बीच में पानी के सरफेस पे बाहर आना ही पड़ता है, सो दैट वी वांट टू टेक एयर इन. सो हमें सांस लेने की ज़रूरत पड़ती है. तो ही व्हाट डज ही डू, ऑथर भी ऐसे ही करता है, वो बाहर आता है सरफेस पे टू टेक माई ब्रेथ. तो मैं बाहर अपनी सांस लेने के लिए बाहर आया, एंड देयर कारी वॉज स्टैंडिंग, और वहाँ कारी खड़ा था. हिज फीट प्लांटेड इन द सैंड बैंक, उसका जो फीट था वो सैंड बैंक पे अड़ा हुआ था, उसने जमा रखे थे अपने पैर. एंड ट्रंक स्ट्रेच्ड आउट लाइक अ हैंड वेटिंग फॉर माइन, और उसने पहले से ही तैयारी करके अपनी ट्रंक जो है, सूंड है, वो बाहर को कर रखी थी. इस तरीके से लग रहा था कि इफ़ ही वुड हैव बीन एंड इफ़ ही वुड हैव बी अ ह्यूमन बीइंग, तो वो उसने ट्रंक को ऐसे दे रखा था जैसे मेरे हाथ पकड़ने के लिए, वो मेरी मदद करने के लिए वो तैयार खड़ा है. सो आई डाइव डाउन अगेन, मैं फिर से डाइव किया, मैंने फिर से उसके अंदर पानी के अंदर छलांग लगाई. एंड पुल्ड द बॉडी ऑफ द ड्राउनिंग बॉय, मैंने डूबते हुए लड़के की बॉडी को खींचा टू द सरफेस, बाहर तक लेके आया. बट not being a good swimmer, although after all the boy was also 9-year-old only, so उतना ज़्यादा एक बच्चे को, एक बच्चा उठा के ला रहा है, he was not that much capable. so वो कहता है कि मैं भी बहुत ज़्यादा अच्छा स्विमर नहीं था, I could not swim, मैं अच्छे से स्विम नहीं कर सकता था. so and the slow current was already dragging me down. और जो पानी का करंट बेटा, करंट दो तरीके के होते हैं. इन इंग्लिश करंट, वन करंट इज़ इलेक्ट्रिकल करंट, एंड दिस करंट इज़ पानी का जो बहाव है. सो वो कहते हैं कि पानी का जो बहाव था वो बहुत ही स्लो था. सो इट वॉज ऑलरेडी ड्रैगिंग मी डाउन. एक तो मैंने एक और बच्चे का वेट पकड़ रखा था, इवन दो आई वॉज नॉट अ गुड स्विमर, बिकॉज इवन ही वॉज ऑल्सो 9-year-old, एंड पानी का करंट भी इतना स्लो था कि उसको और ड्रैग करके नीचे ले जा रहा था. सो वॉट हैपन्स नेक्स्ट? Seeing us drift by in the current, Kari, who was usually slow and ponderous, suddenly darted down like a hawk and came halfway into the water, where I saw him stretch out his trunk again. I raised up my hand to catch it, and it slipped. I found myself going under the water again, but we'll just move to the next page. But this time I found that the water was not very deep, so I sank to the bottom of the river and doubled my feet under me, and then suddenly kicked the river bed and so shot upwards like an arrow. In spite of the fact that I was holding the drowning boy with my hand, as my body rose above the water, I felt a lasso around my neck. This frightened me. I thought some water animal was going to swallow me. I heard Kari squealing, and I knew it was his trunk around my neck. He pulled us both ashore.
सो हेयर इज़ द प्रोसेस हाउ इट वेंट अहेड. सो आगे जाके क्या हुआ था, ये पूरा ये जो कहानी है इसमें बताया गया है कि ये बॉय को लेके आ तो रहा था बट सडनली ही कुडंट मतलब कंट्रोल हिमसेल्फ. वो पानी के करंट से वो ऑथर वाज आल्सो अबाउट टू ड्राउन. अब वो कोशिश कर रहा था वो बट वो आ नहीं पा रहा था सरफेस पे. सो कारी जो यूजुअली जो हमेशा एलिफेंट जो हमेशा स्लो एंड पॉन्डरस बोलते हैं कि जो हमेशा यूजुअली थोड़ा डल और स्लो रहता है, वो सडनली उसने एक्शन शुरू किया बिकॉज ही सॉ कि अब उससे नहीं हो पा रहा बॉय से. सडनली ही डार्टेड डाउन लाइक अ हॉक. हॉक होता है जो एक जैसे बोलते हैं वो चील जो हॉक होता है, बर्ड होती है. ही इज़ वेरी शार्प एंड बहुत ज़्यादा क्विक होता है उसका एक्शन. तो कहता है वो हॉक के जैसे आया, केम वे हाफ वे इनटू द वाटर. पानी में उसने जल्दी से एक्शन लिया एंड आई सॉ हिम स्ट्रेच विथ हिज ट्रंक अगेन. उसने फिर अपनी जो सूंड है ट्रंक निकाल के स्ट्रेच किया, ज़ोर से खींच के मुझे पकड़ना चाहा. आई रेज माई हैंड टू कैच इट. मैंने उसकी ट्रंक जो उसने बढ़ाई थी उसको पकड़ने की कोशिश की बट इट स्लिप्ड. वो स्लिप हो गई, हाथ से फिसलने लगी. आई फाउंड माई सेल्फ गोइंग इन टू द वाटर अगेन. अब वो कहता है कि फिर से मैं पानी के अंदर डूब रहा था बट दिस टाइम आई फाउंड दैट द वाटर वॉज नॉट वेरी डीप. अब इस बार मुझे लग रहा था कि पानी अब इतना ज़्यादा डीप नहीं है. तो मैंने क्या किया, बॉटम ऑफ द रिवर में जैसे ही मैं सैंक हो रहा था, जैसे ही मैं डूबने जा रहा था, तो मैंने आई डबल्ड अप माई फीट अंडर द, और मैंने अपने पैर की पोजीशन इस तरह से बनाया कि सडनली मैंने किक किया, नीचे से ऊपर की तरफ किक, ज़ोर से एक प्रेशर दिया और मैं तेज़ी से ऊपर आया. किस तरीके से, लाइक एन एरो. सो अगेन देर इज़ अ कंपैरिजन. उसने अपनी बॉडी का कंपेयर एरो से किया है. जैसे तीर निकलता है कमान से, उस तरीके से मैंने भी अपनी पोजीशन बदली और आई वॉज लाइक कमिंग अबव द सर्फेस. मैं ऊपर आने की हो रहा था. वो कहता है कि ऑल दो आई हैड अ बॉय इन माई हैंड, मेरे हाथ में बॉय की बॉडी भी थी बट स्टिल आई कुड सी दैट मैंने जो पुश लगाया है उससे मैं ऊपर को आने को सक्सेसफुल हो रहा था. बट अगेन क्या होता है कि ही फील्स दैट देयर इज़ अ लैसो अराउंड माई नेक. सो लैसो क्या होता है, देर इज़ एक तरह का फंदा होता है, जैसे देर इज़ अ रोप और जिसके दूसरी तरफ एक कोई वो लगा हुआ था जो जिससे किसी को फंसाते हैं. इट इज़ लाइक अ नॉट. रोप में कोई नॉट लगी हुई है, उस तरीके से उससे किसी को फंसाया जाता है. उस तरीके का थोड़ी देर बाद आई कुड फील कि मेरे गर्दन में किसी ने कुछ फंसा रखा है, कुछ फंसा हुआ है. सो दिस फ्राइटेंड मी. बॉय वाई ही वॉज फ्राइटेंड, ही वॉज फ्राइटेंड टू थिंक दैट कोई वाटर एनिमल है, ही इज़ गोइंग टू स्वेलो मी. उसे लगा कि पानी के अंदर कोई ऐसा जानवर है जो शायद मुझे निगल जाएगा. सो आई फाउंड कारी स्क्वीलिंग. फिर मुझे थोड़ी देर बाद कारी की आवाज़ सुनाई दी. वो स्क्वीलिंग मतलब हल्का सा चीखना या चिल्लाने की टाइप की जो आवाज़ आती है, स्क्वीलिंग. सो उस आवाज़ में वो कुछ बोल रहा था, मतलब आवाज़ दे रहा था. एंड आई न्यू, और फिर मुझे पता चल गया कि ये कोई लासो, कोई रोप नहीं है. नीदर इट इज़ एन एनिमल हु इज़ ट्राइंग टू स्वैलो मी. इट इज़ कारी एंड इट वॉज हिज ट्रंक. कारी ने अपनी ट्रंक को इस तरीके से उसके गर्दन में फंसा के खींचने की कोशिश करा था. तो this all shows that Kari was trying all his way to help both the children. So he pulled us both ashore and finally Kari could pull both the boys ashore. means किनारे लेके आ गया. शोर उसके रिवर के किनारे लेके आ गया. So children, as this chapter is very long and I don't want the video to be so long that it couldn't be downloaded. So again the next part of the chapter, whatever happens next, so there is a preview of the chapter also, the next part of the story also given. So we'll cover it in the next video. Till that time, if you have any doubts, you can ask me in the next class. I hope you understood, and we'll continue this story in the next class. Thank you and have a nice day.